پاکستان کی فرینکفرٹ میں قونصل خانے پر حملے کی شدید مذمت۔ جرمن حکومت ویانا کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، پاکستانی سفارتی مشنز اور عملے کی سلامتی کو یقینی بنائے، ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ آنے والے دنوں میں موسمیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ پاکستان کاربن کا صرف 2% اخراج کرتا ہے، جبکہ ہمارا نقصان 90% ہے۔ ہماری بقا درختوں کے ساتھ منسلک ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آب و ہوا کو صاف رکھیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور آئندہ نسلوں کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا CDA کے زیر اہتمام شجرکاری مہم کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ پاکستان خطے کا ایک اہم ترین ملک ہے۔ OIC ایک مربوط اور مؤثر فورم ہے۔ عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے OIC ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ چیلنجز سے نبرد آزما ہونا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا OIC کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پبلک سروس سے متعلقہ سرکاری محکموں کی نگرانی بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی پر انحصار بڑھانے کی ہدایت۔ انتظامیہ اور پولیس کے لیے جدید ترین ٹریننگ میکانزم تشکیل دینے کا بھی حکم۔ کی پرفارمنس انڈیکس کے قیام سے افسران میں احساس ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ مریم نواز شریف۔ پاکستان میں کچھ لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم سب نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ PTI نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا۔ ایک شخص اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ سپریم کورٹ سے ان کو وہ ریلیف ملا جو انہوں نے مانگا ہی نہیں۔ یہ ملک پہلے سے بہتر چلے گا اور معاشی طور پر بھی بہتر ہوگا۔ سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل میمن کی کراچی میں میڈیا ٹاک۔ SIFC کے تعاون سے IT برآمدات میں مسلسل اضافہ۔ رواں سال IT برآمدات $3.5 ارب تک بڑھنے کا امکان۔ حکومت نے اگلے 5 برس میں IT پر مبنی برآمدات کو $15 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے۔ IT کے شعبے میں برآمداتی اصلاحات کے پیش نظر حکومت نے رواں مالی سال میں $79 ارب سے زائد کی خطی رقم مختص کی ہے۔ صدر جو بائیڈن کا صدارتی انتخاب کی دوڑ سے دستبردار ہونے کا اعلان۔ جو بائیڈن نے اپنی جگہ نائب صدر کمیلا ہیرس کی بطور صدارتی امیدوار توثیق کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانے کے ساتھ ساتھ پارٹی اور قوم کو متحد کرنے کی کوشش کروں گی۔ صدارتی امیدوار کے طور پر توثیق فخر کی بات ہے۔ میرا مقصد آئندہ صدارتی الیکشن کے لیے ڈیموکریٹس کی نامزدگی حاصل کرنا اور جیتنا ہے۔ نائب صدر کمیلا ہیرس۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار ہونے پر ان کے حریف امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ نائب صدر کملا ہیرس کو صدارتی الیکشن میں شکست دینا بائیڈن کے مقابلے میں اور آسان ہوگا۔ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ بائیڈن کو امریکی تاریخ کا واحد بدترین صدر قرار دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری، مزید 64 افراد شہید، 105 زخمی، متعدد رہائشی عمارتیں زمین بوس، خوراک پانی اور ادویات کی شدید قلت۔ یمن کی حدیدہ بندرگاہ پر بھی صہیونی حملے، 6 افراد شہید، 83 زخمی، سعودی عرب اور ایران کی شدید مذمت۔ افغانستان مکمل طور پر پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہے۔ افغان حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کو باہر نکال دے۔ TTP کے سربراہ کی آڈیو لیک سے ثابت ہوا کہ یہی لوگ ملک دشمن عناصر ہیں۔ ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کو ان خارجیوں کے سروں کو کچلنا چاہیے۔ عوام کا سربراہ کا ردعمل۔ TTP خارجی نور ولی محسود کی آڈیو لیک پر رد عمل۔ سی پیک فیز 2 خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا مرحلہ۔ گوادر ایک مصروف بین الاقوامی تجارتی مرکز بننے کے لیے تیار۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ایسٹ بے ایکسپریس وے اور گوادر پورٹ جیسے بڑے منصوبوں کی تکمیل سے نئے دور کا آغاز۔ چین پاکستان فرینڈشپ ہسپتال گوادر اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اور گوادر واٹر فلٹریشن پلانٹ سمیت دیگر فلاحی منصوبوں سے عوام کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب۔
मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए मोदी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। हिज़्बी इख्तिलाफ जमातों के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमात में इजाफा। कर्नाटक के रेवेन्यू के वजीर कृष्णा बायरे के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से मुकदमा दर्ज। ये इदारा मोदी हुकूमत की कठपुतली बनकर रह गया है। कृष्णा बायरे आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के अक्सर शहरों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के। पीडीएमए का मुताल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी। श्रीलंका में वुमेन्स टी20 एशिया कप पाकिस्तान ने नेपाल को 9 विकेटों से हरा दिया। 109 रन का हदफ 11.5 ओवर्स में 1 विकेट पर हासिल किया। गुल फिरोजा के 57 और मुनीबा अली के नॉट आउट 46 रन। पाकिस्तानी टीम अपना तीसरा मैच कल मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ खेलेगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं मनाजिर हुसैन। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील की जाने बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ इंतहा पसंदों के गिरोह की जानिब से फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान कौंसल खाने के अहाते में तोड़ फोड़ और अमले की जिंदगियों को खतरे में डालने पर पाकिस्तान ने जर्मन हुकूमत से शदीद एहतजाज किया है। इसहाक डार ने यह भी कहा कि जर्मन हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और जर्मनी में पाकिस्तान के सिफारती मिशन और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि जर्मन हुकूमत वाक़े में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई के लिए फौरी इक़दाम करे और सिक्योरिटी में कोताही के जिम्मेदारों का मुहासबा किया जाए। यहाँ पर एक और अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद से मुतालिक मुतअद्दिद अहम उमूर पर गौर किया गया। नायब वज़ीर आज़म को सेक्रेटरी दाखिला और DG इम्पैस की तरफ से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बरवक्त पासपोर्ट के इजरा की सहूलत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर आज़म को बताया गया कि समंदर पार पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 60 दिन के अंदर इजरा कर दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि आने वाले वक्तों में माहौलियाती तग़य्युर बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत माहौलियाती तग़य्युर से निपटने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया को माहौलियाती तग़य्युर के असरात से निपटने में पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहिए। इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इस्लामाबाद के शहरी भी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। वो अपने लगाए गए दरख्तों को एप्लीकेशन के जरिए ट्रैक करके उनकी निशोनुमा और बढ़ोतरी देख सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात का ये भी कहना था कि मांगला नेशनल पार्क इस्लामाबाद की पहचान है। इस्लामाबाद में हवा का मेयार बाकी शहरों से बेहतर है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PBS समेत तमाम मीडिया अपनी नशरियात का कुछ हिस्सा माहौलियाती तग़य्युर से आगाही के लिए मुख्तस करे। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर आने वाली नस्लों को महफूज करना होगा। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राब्ता रुमीना खुर्शीद आलम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम सबको जिम्मेदारी के साथ माहौलियाती तब्दीली से निपटने में अपना किरदार अदा करना होगा। रुमीना खुर्शीद का कहना था कि दरख्त लगाएं ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। यहाँ पर बयान शामिल करेंगे चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का, जिनका ये कहना है कि मुस्लिम उम्मा की तरक्की और खुशहाली के लिए साइंसी मैदान में तहकीक ज़रूरी है। पानी, तवानाई, खुराक की फ्राहमी तरक्की पजीर ममालिक की सलामती का मसला बन चुके हैं। इस्लामाबाद में OIC साइंस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माहिरीन की मुश्तरका काविश तमाम मुस्लिम मुल्कों के अवाम के लिए अहमियत की हामिल है। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और कुदरती वसाइल में कमी से कई संगीन मसाइल जन्म ले रहे हैं। पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए हमें पानी, तवानाई और खुराक में जदीद तहकीक, मुश्तरका मनसूबों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। हमें काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक माहौलियाती चैलेंजेस, खुराक, पानी, तवानाई जैसे मसाइल पर काबू पाकर ही पायदार तरक्की का हदफ हासिल कर सकते हैं। OIC ममालिक को मुश्तरका चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए राबतों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत नौजवानों की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है।
उनका ये भी कहना था कि हमारे नौजवान बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। राना मशहूद अहमद ने कहा कि बलूचिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है। बलूचिस्तान के नौजवान मुल्क के मुस्तकबिल के ममार हैं। हर नौजवान माशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। राना मशहूद अहमद ने कहा कि हुकूमत का काम प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। मुल्क भर के नौजवानों को मसावी मौके फराहम कर रहे हैं। और सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का है कहना कि पाकिस्तान में कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं। ये मुल्क हमारा है और हम सब ने इसको ठीक करना है। आवाम को रिलीफ पहुंचाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसके लिए हर शोबे में बेहतरी लाई जा रही है। कराची में सूबाई हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पीपल्स बस सर्विस के 3 नए रूट्स शुरू करने की तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि PTI ने नफरत की सियासत को फ़रोग़ दिया। एक शख्स अपने आप को कानून से बालातर समझता है। इस वक्त ग्लोबल चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में भी मौसमियाती तब्दीली का असर हो रहा है। मुल्क में मसाइल हैं, लेकिन तमाम सियासी जमातों और ताजिर बरादरी को इस मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। ये मुल्क पहले से बेहतर चलेगा और माशी तौर पर भी मजबूत होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टर ऑफ इवैल्यूएशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने मुलाकात की। इस मुलाकात में इंतजामी सतह पर गवर्नेंस, शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर हुकूमती फैसलों और पॉलिसी साजी में अवामी राय को शामिल करने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला ने बाबर अलाउद्दीन को अवामी खिदमात से मुतालिक महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाने की हिदायत की और कहा कि परफॉर्मेंस इंडेक्स के क़याम से अफसरान में एहसास से जिम्मेदारी का इजाफा हुआ है। मरियम नवाज शरीफ ने इंतजामिया और पुलिस के लिए जदीद तरीन ट्रेनिंग मैकेनिज्म तश्कील देने और परफॉर्मेंस इंडेक्स की सख्त मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत की। और यहाँ पर अच्छी खबर आपको देंगे कि SIFC के इक़दामात से IT का शोबा तेज़ी से तरक्की करने लगा है। गुज़श्ता माली साल में IT बरामदात में 2.6 अरब डॉलर तक रहीं, जो रवां साल 3.5 अरब डॉलर तक बढ़ने के इम्कानात हैं। हुकूमत ने आइंदा 5 बरस में IT पर मबनी बरामदात को 15 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। IT के शोबे में बरामदी सलाहियत के पेश नज़र हुकूमत ने रवां माली साल में 79 अरब रुपये से ज़ायद की खतीर रकम मुख्तस की है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुख्तस रकम में से 19 अरब रुपये कराची और इस्लामाबाद में IT पार्क के क़याम में सर्फ होंगे, जबकि 22 अरब रुपये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के लिए मुख्तस किए गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान IT इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना था कि डिजिटल इकोनॉमी की सलाहियत का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए हमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाने और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत में इजाफे की ज़रूरत है। अवाम की जानिब से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की जा रही है। अफगानिस्तान से TTP के खारजी नूर वली जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। अवाम कहते हैं कि TTP के सरबराह की गुफ्तगू से ये साबित होता है कि यही लोग मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसे दहशतगर्दों को कुचलना चाहिए। अफगानिस्तान को चाहिए कि वो इस तरह के बंदे जैसे ना निकाले मुल्क से। ये पाकिस्तान को कमजोर करने की इन लोगों की साजिश है। हमारी अफवाज को चाहिए कि ये इन दहशतगर्दों को सख्ती के साथ कुचल दिया जाए। उनको जवाब उनका उसी तरीके से दिया जिस तरह वो चाहते हैं। वो कहते हैं इंतशार फैलाएं, हम आपको पैसे देंगे, सिर्फ मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, ताकि मुल्क के अंदर गड़बड़ हो, इस मुल्क में सुख चैन जो है ना वो खत्म हो जाए। तहरीक तालिबान की जानिब से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। हम पाक फौज से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाए, इनको निशान इबरत बनाए। TTP के हवाले से जो वॉइस जो उनके सरबराह की जानिब से जो जारी हुआ कि हम पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ जंग करेंगे, तो हम इस सिलसिले में भी उनके इस वॉइस की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और अगर वो नहीं समझते तो इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जवाब उनका उसी तरीके से दिया जिस तरह वो चाहते हैं। TTP के सरबराह की कॉल जो है वो इस बात का सबूत है कि वो दुश्मन अनासिर हैं, वो मुल्क के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। ये साबित होता है कि अफगानिस्तान पूरी तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में पूरी तौर पर मुलव्वस है। मेरा तो ये मुतालबा है कि इसके हवाले से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाना चाहिए। TTP का जो सरगना है नूर अली मसूद खारजी एक TTP का सरगना है। उनका जो मिशन है वो पाकिस्तान में इन लोगों को आपस में लड़ाकर
मतलब पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाना है, तो हम उनके मतलब भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान को कमजोर करने की इन लोगों की साजिश है, इनको पकड़ना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल तालिबान से दरख्वास्त ये है कि वो इस नूर वली इसके खिलाफ एक्शन ले लें फौरन। अफगानिस्तान के कमांडर की जो खुफिया कॉल ट्रेस की गई है, उससे ये वाजिया पता चल रहा है कि वो दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान से हदायत ले रहा है। लिहाजा अदारों को चाहिए कि इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए ताकि किसी भारी जानी नुकसान से बचा जा सके। ये उसने जो धमकियां दी हैं ये गलत काम है, गलत किया उसने। अगर जहाँ से वो धमकियां देता है जी, उस हुकूमत को चाहिए, अफगानिस्तान को चाहिए कि वो इस तरह के बंदे जो से ना निकाले मुल्क से। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ये जो टेलीफोनिक कॉल के जिम्मेदार हैं उनको फौरी तौर पर कानूनी शिकंजे में लेना चाहिए। ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है ना, ये होनी चाहिए। हमारी अफवाज को चाहिए कि ये इन दहशत गर्दों को सख्ती के साथ कुचल दिया जाए। और पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ यक जुबान है। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और अमन बहाल करने में अहम किरदार अदा कर रही है। FC कबायली अजला में तालीम और सेहत की फराहमी के लिए मुतहरिक है और मुफ्त राशन की फराहमी को भी यकीनी बना रही है। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कबायली अजला में तरक्की और खुशहाली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम फ्रंटियर कोर को अपनी फ़ौज कहते हैं और हर साल बड़ी तादाद में इस फ़ौज का हिस्सा बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के साथ मैं हूँ नाज़िया कमल। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे अमेरिका से। अमेरिकी सदर जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। इस बात का ऐलान सदर बाइडन ने सोशल मीडिया पर किया। जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दस्तबरदारी का फैसला पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में किया, ताहम बक़िया मुद्दत सदर के तौर पर फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो दूंगा। बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। जो बाइडन ने अपनी जगह नायब सदर कैमिला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से आइंदा सदारती इलेक्शंस में बतौर उम्मीदवार नामजदगी की हिमायत करने पर कैमिला हैरिस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हराने के साथ साथ पार्टी और कौम को मुत्तहिद करने की भी कोशिश करूंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका की नायब सदर कैमिला हैरिस ने कहा कि सदर जो बाइडन की जानिब से सदारती उम्मीदवार के तौर पर तौसीक फ़ख्र की बात है। मेरा मकसद आइंदा सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट्स की नामजदगी हासिल करना और जीतना है। कैमिला हैरिस ने मज़ीद कहा कि सदर बाइडन ने मुल्क और आवाम को हर चीज़ से बालातर रखा। जो बाइडन की गैर मामूली क़यादत और मुल्क के लिए खिदमत उन पर उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ट्रंप को हराने के साथ साथ पार्टी और कौम को मुत्तहिद करने की भी कोशिश करूँगी। और नाज़रीन, साबिक़ अमरीकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदारी के ऐलान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि सदर बाइडन ने अमरीका को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने समाजी राबते की वेबसाइट ट्रूथ पर एक पोस्ट में जो बाइडन को अमरीका की तारीख का वाहिद बदतरीन सदर भी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन ने सिर्फ झूठ और जाली खबरों से यह ओहदा हासिल किया था। उन्होंने अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस के मुतवक्किल सदारती उम्मीदवार होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कैमिला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडन के मुकाबले में आसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के अज़्म का इजहार किया। कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। नाज़रीन, आलमी बिरादरी की जानिब से फ़लस्तीन में जंग बंदी के मुतालिबात दोहराने के बावजूद भी गजा पर इसराइली जुल्म सितम का सिलसिला जारी है और बर्बरियत का ये सिलसिला रुक नहीं सका। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सेहोनी हमलों में 64 फ़लस्तीनी शहीद और 105 ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में मुतादिद रिहायशी इमारतें ज़मींबोस हो गई हैं, जबकि खुराक, पानी और अद्वियात की भी शदीद क़िल्लत का सामना है।
مشرقی خان یونس سے انخلا کے اسرائیلی فوج کے حکم کے بعد فضائی حملوں میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی بمباری سے 25 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیل کی بمباری میں خاتون اور 2 بچوں سمیت 15 سے زیادہ فلسطین شہید ہوئے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران صہیونی فوج کے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر 63 حملوں میں کم سے کم 91 فلسطینی شہید اور 251 زخمی ہوئے ہیں۔ خبر شامل کریں گے بھارت سے۔ ناظرین، اقتدار میں آنے کے بعد مودی نے سیاسی مخالفین کے خلاف محاذ کھول لیا ہے۔ مخالفین کو کچلنے کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو کھلی چھٹی دے دی۔ ریاست کرناٹک کے ریونیو کے وزیر کرشنا بائرے کہتے ہیں کہ مودی حکومت کے دور میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی زیر نگرانی سیاسی مخالفین پر مقدمات میں تقریباً 400 گنا اضافہ ہوا ہے، جس سے ملک میں انتشار پھیلا ہے۔ 14 سیاسی جماعتوں نے اختیارات کے ناجائز استعمال پر انکم ٹیکس اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے۔ مزید خبروں میں بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت، اظہار رائے اور پرامن سیاسی سرگرمیوں کی آزادی سمیت تمام بنیادی حقوق سے محروم کرنے پر بھارت کی مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے فوجی طاقت کے ساتھ کالے قوانین کا بھی بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ بی جے پی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں ہندو بستیاں تعمیر کی، بھارتی فوجیوں کو زمینیں الاٹ کی اور نئے فوجی کیمپس اور مندر تعمیر کیے، جن کا مقصد مسلم اکثریتی جموں کشمیر کو ہندو اکثریتی علاقے میں تبدیل کرنا ہے۔ جموں میں کئی سیاسی اور سماجی گروپس نے ایک اجلاس میں دھمکی دی ہے کہ اگر مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کو دیے گئے مزید اختیارات ان سے واپس نہ لیے تو وہ بھوک ہڑتال کریں گے۔ اجلاس میں مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے سوپور کیمپس میں سینکڑوں بے روزگار زرعی گریجویٹس نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور مقبوضہ علاقے میں زرعی گریجویٹس کی بے روزگاری پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ KMS کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو بھارتی مظالم اور ہندوتوا یلغار سے نجات دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات 10 لاکھ سے زائد بھارتی فورسز اہلکاروں کی وجہ سے کشمیری بدستور کٹھن حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اور گوادر سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کے ساتھ یہ ایک مصروف بین الاقوامی تجارتی مرکز بننے کے لیے تیار ہے۔ $230 ملین کی لاگت سے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، $179 ملین سے ایسٹ بے ایکسپریس وے، $300 ملین کی لاگت سے گوادر پورٹ، $100 ملین کی لاگت سے چین پاکستان فرینڈشپ ہسپتال مکمل ہو چکا ہے۔ گوادر ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، گوادر واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ، فری زونز اور گرین پامز گوادر جیسی ہاؤسنگ اسکیم کے منصوبے بھی گوادر کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی ریاضی اولمپیاڈ 2024 میں چاندی اور کانسی کے تمغے جیت لیے۔ پاکستانی ٹیم نے برطانیہ میں منعقدہ 65ویں بین الاقوامی ریاضی اولمپیاڈ IMO میں چاندی اور کانسی کے تمغے جیتے۔ کراچی کے طالب علم رضی حسن منصور نے چاندی کا تمغہ اور کراچی گرامر اسکول کے محمد احمد بھٹی نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ لاہور کے سندر اسکول کے محمد مہد عارف نے پاکستان کے لیے آنریبل مینشن حاصل کیا۔ گزشتہ ہفتے 2 پاکستانی طلباء نے آستانہ قازقستان انٹرنیشنل بایولوجی اولمپیاڈ میں 2 کانسی کے تمغے جیتے تھے۔ پاکستانی ٹیم نے STEM کیریئر پروگرام کے زیر اہتمام اولمپیاڈ میں حصہ لیا، جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اور اپلائیڈ سائنسز PICE کا مشترکہ پروگرام ہے۔ مصر میں پاکستان کے سفیر ساجد بلال نے گیزا صوبے کے گورنر عادل سعید ابراہیم لنگر سے ملاقات کی۔ سفیر ساجد بلال نے گورنر عادل سعید ابراہیم لنگر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ دونوں فریقوں نے مشترکہ مفادات کو فروغ دینے اور تجارت کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔
बहावलपुर में जारी 2 रोज़ा दूसरा नेशनल मैंगो फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया। इस फेस्टिवल में कौन कौन से मज़े के आम रखे गए हैं, इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं अब्दुल्ला मुख्तार अपनी इस रिपोर्ट में। फलों के बादशाह आम को अपनी मुनफरिद खसूसियात की वजह से बेहद पसंद किया जाता है। आम जनूबी पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है और इसकी मांग दुनिया भर में है। इस सिलसिले में बहावलपुर में मैंगो फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने यहाँ का रुख किया। जबकि जनूबी पंजाब में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अकसाम के आमों के स्टॉल्स पर अनवर रटोल, चनाब गोल्ड, सिंधड़ी, दुसहरी, लंगड़ा, लाल बादशाह, चौंसा, काला चौंसा और सफेद चौंसा समेत बहुत सी अकसाम के आम सजाए गए थे, जिन्हें शहरियों ने बेहद पसंद किया। ये हमारी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट है जो बाहर भी जाती है। यहाँ पर लोगों को बहुत सारी अकसाम देखने का मौका मिला। हमें बताया गया मैंगो की अकसाम के बारे में, मैंगो किस तरह से खाए जाते हैं, इनोवेटिव वेज ऑफ ईटिंग मैंगोज के बारे में और मैंगो के फवाइद क्या हैं। इतनी सारी अकसाम मैंने आज तक कभी नहीं देखी। मेरा तो दिल चाहा कि मैं सारे मैंगोज उठा कर घर ले जाऊँ और ठंडा करके खाऊँ। पिछली दफ़ा भी मैं आया था फेस्टिवल पे, इतना अच्छा मतलब इतना हल्ला गुल्ला नहीं था पिछली दफ़ा। इस दफ़ा माशाल्लाह काफ़ी रश है। इस मौके पर मुंतज़मीन की जानिब से लोगों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ दिलचस्प रंगारंग प्रोग्राम्स भी पेश किए गए, जबकि पाकिस्तान की मशहूर कॉमेडियन जोड़ी बरकत और उज़मी ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से बच्चों और बड़ों के दिल मोह लिए। पाकिस्तानी आम जायके के एतबार से दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। इस मैंगो फेस्टिवल का मकसद पाकिस्तानी आम की खसूसियात को उजागर करना था। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। आम की बात हो गई, बच्चों की आजकल छुट्टियां चल रही। कुछ बात करेंगे समर कैंप्स की। लाहौर लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर में जारी समर कैंप में बच्चों के लिए तालीमी और तफरीही सरगर्मियां जारी हैं। मज़ीद तफसील से आगाह कर रही हैं वर्दा सलीम। लाहौर का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए एक तफरीही और तालीमी प्लेटफॉर्म फराहम करता है। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में 4 साल से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को लाइब्रेरी, म्यूजियम, VR गेमिंग, फिल्में, दीगर इंडोर और आउटडोर गेम्स की सहूलत के साथ साथ तालीमी और तफरीही सहूलतें दी जाती हैं। समर कैंप का आगाज किया, जिसमें 26 प्रोग्राम हमने मॉर्निंग में और 26 प्रोग्राम हमने इवनिंग में लॉन्च किए। और इसी तरह हमने समर फीस्टा का एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस और एजुकेशन विद रिक्रिएशन और इस्लामिक वैल्यूज़। हमारा बुनियादी मकसद आज की कौम को इस्लामिक वैल्यूज़ और एथिक्स के ऊपर ट्रेन करना है। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में समर कैंप के दौरान भी मुख्तलिफ तालीमी और तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है। लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूल्स के तलबा और तालबात भी यहाँ आते हैं और मुख्तलिफ गेम शो, बुक रीडिंग मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। अभी करंट सेशन में भी हमारे पास अराउंड 1000 बच्चा रजिस्टर्ड है और इसमें डिफरेंट जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन, रिक्रिएशन और समर फेस्टा जैसे कोर्सेज शामिल हैं। मैं अपनी रोबोटिक्स की क्लास ले रहा हूँ। रोबोटिक्स बहुत फन है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स आई हूँ, अपना समर कैंप एक्टिविटीज़ इंजॉय कर रही हूँ और मैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इंजॉय कर रही हूँ वो आर्चरी है। अभी चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए बच्चों को आला इखलाकी इक़दार सिखाने और उनकी किरदार साजी में भी मसरूफ़ अमल है। समर कैंप के जरिए बच्चे तालीम और तरबियत के साथ साथ खेल कूद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तानी तालिबात ने खानों के आलमी मुकाबले में सोने और कांसी के तमगे जीत कर पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं आयशा अफरीन। मलेशिया में खानों का आलमी मुकाबला बैटल ऑफ द शेफ्स 2024 मुनक़िद हुआ। मुकाबले में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की 2 तालिबात ने गोल्ड मेडल जबकि 2 ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। हम गए इसीलिए थे कि कुछ अचीव करके आए। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी जो कैटेगरी थी वो मेन कोर्स सी फूड थी। जब आपको गोल्ड मेडल के लिए अनाउंस किया जाता है तो वो फीलिंग ये बिल्कुल अलग होती है। वी कांट एक्सप्लेन दिस थिंग। ये अचीवमेंट हमारे पाकिस्तान की है। विधम के डायरेक्टर न्याज अली मलकानी ने जीतने वाली तालिबात को सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 50-50 हज़ार रुपए के चेक दिए। पिथम जो ट्रेन कर रही है, जिस स्टैंडर्ड्स पे ट्रेन कर रही है,
तो दे आर इक्वल टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसके लिए उनको विन करके आना ये हमारे बड़े एहसास की बात है। आलमी मुकाबला बैटल ऑफ द शेफ्स 1988 से मलेशिया में मुनक़िद किया जा रहा है और रवां साल इस 3 रोज़ा मुकाबले में 32 ममालिक और मलेशिया की 13 रियासतों के माहिर शेफ्स ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तानी शेफ्स की कारकर्दगी नुमाया रही। पाकिस्तानी खवातीन न सिर्फ घरों में बल्कि आलमी सतह पर होने वाले मुकाबलों में भी बेहतरीन खाने बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। क्या ही मज़े मज़े के खाने हैं पाकिस्तानियों के जो दुनिया भर में जाने माने जाते हैं। रिपोर्ट आपने देखी, बुलेटिन में आगे चलकर आपको बताएंगे कि मौसम कैसा है और कैसा रहेगा। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पानी जिंदगी है, लेकिन फिक्र अंगेज पहलू ये है कि हम तेजी से साफ पानी के संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि हम रोजाना लाखों गैलन साफ पानी जाय कर देते हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और अंदरून सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पीने के साफ पानी के लिए मीलों का सफर करना पड़ता है। याद रखें, अगर आज हमने होश के नाखुन ना लिए तो 2040 तक पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की किल्लत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इससे पहले कि हम पानी की बूंद बूंद को तरसें, पानी के ज़िया को रोकें और जिंदगी को खतरात से बचाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपकी जिंदगी को गैर महफूज बना सकता है। सफर के दौरान अपनी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर रखें। अगर मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी हो तो गाड़ी साइड पर रोक लें। छोटी सी गफलत से अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में मत डालें। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मुहतात रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम आज शाम या रात के औकात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मुल्क के दीगर इलाकों में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सईद वज़ीर रिपोर्ट करेंगे। आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के है, जिसके बाद कई रोज से जारी गर्मी का असर कम हो जाएगा। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला, स्वात, मानसेरा, मर्दान, पेशावर और खैबर में बारिश का इम्कान है। तहम डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लकी, मरमत और टांग में मौसम गर्म और शदीद हबस रहेगा। सुबह सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। तहम बलूचिस्तान के इलाके खुजदार, लजबेला, जोब और बारकान, जबकि सिंध के शहरों टट्टा, बादीन, सांगड़ और उमरकोट में बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुजवी अबर आलूद रहने के साथ साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। सईद वजीर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। शहर कायद में मौसम आज भी शदीद गर्म और मरतूब है। हवा में नमी का तनासुब 79% है। समंदरी हवाएं बिल्कुल बंद हैं, जिसके बायस शहर में हब्स की कैफियत बरकरार हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं कराची में हमारे नुमाइंदे हसन नासिर सिद्दीकी से। जी हसन नासिर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? शहर कायद में आज भी मौसम शदीद गर्म और मरतूब है। समुद्री हवाएं बिल्कुल बंद हैं, जिसकी वजह से एक हब्स की कैफियत तारी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दिन के किसी औकात में यानी कि दोपहर के बाद समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहर में शुमाल मगरिब से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सफूरा, एयरपोर्ट और इसके अलावा कुछ मज़ीद इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश हुई, जिससे वक्ती तौर पर मौसम खुशगवार हो गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा हब्स की कैफियत तारी हुई, जो कि आज भी बरकरार है। जी
بہت شکریہ حسن ناصر صدیقی کراچی سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مدثر خان سے۔ جی مدثر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج صبح سے ہی بادل چھائے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے، جس سے درجہ حرارت میں کمی آئی ہے اور موسم خوشگوار ہے۔ مختلف مقامات پر صبح سے ہی ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم پاکستان میں داخل ہو چکا ہے اور آج شام سے لاہور سمیت پنجاب کے متعدد اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے، اور جس سے درجہ حرارت میں مزید کمی آئے گی اور یہ سپیل 25 تاریخ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق تمام نشیبی علاقوں میں ٹیمیں الرٹ ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر تمام ضروری اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آج شام سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ بہت شکریہ مدثر خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے کوئٹہ کا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں آج موسم شدید گرم اور حد زدہ رہنے کا امکان ہے، تاہم بلوچستان کے چند اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے ہمارے نمائندے اسرار احمد سے۔ جی، بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں آج بھی موسم شدید گرم اور ربس رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، تاہم بلوچستان کی جو چند اضلاع ہیں جن میں خزدار، لسبیلا، آواران، شیرانی کے ملحقہ علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق 12 جون سے شروع ہونے والے بارشوں میں بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 10 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 2 درجن کے قریب افراد زخمی ہو چکے ہیں، 90 کے قریب مکانات منہدم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح 17 کلومیٹر سڑکیں جبکہ 330 ایکڑ جو زرعی اراضی ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں ان بارشوں سے۔ آج بھی 22 اور 23 جولائی کو بلوچستان کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ پی ڈی ایم اے نے متعلقہ انتظامیہ ان کو الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو درجہ حرارت کی بات کریں، کوئٹہ میں آج زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بلوچستان کا جو نسبتاً ٹھنڈا علاقہ کلات میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ سب سے زیادہ تربت اور نوکنڈی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ساحلی علاقوں کی بات کریں تو گوادر میں 36 اور جیگنی میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوار، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور جنوب مشرقی اور زیریں سندھ میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور شدید مرطوب رہے گا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ بات کریں گے نوکنڈی کی، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دال بندین میں بھی 45، تربت 45، اٹک 44، جبکہ جیکب آباد میں بھی 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ انفرادی نہیں، اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پولیو سے پاک پاکستان، ہر بچے کے لیے۔ Welcome to PTV Global app. Explore dramas and discover documentaries. Engage with current affairs. Familiarity with procedures, arguments, inquiry, applications, examinations, and cross-examination of witness, and of course, the icing of the cake, namely the final oral arguments before the court, are skills best required under the observation of an experienced counsel. Some of you will secure position as solicitor,
I was informed that many who pass out Hazara University do not pursue the legal profession but instead pursuing the jobs from seemingly secure positions that are offered at a young age. Some may take the civil services exam or get selected as judges. At least a few of you may pursue a postgraduate courses and even doctoral courses and teach law. Last but not the least, many of you may practice law. I have touched upon the wide range of options only to underscore the advantages of passing a law course today. The law graduate today is smarter than his counterpart was a few decades ago. I strongly advise you, choose honor over hypocrisy, virtue over vulgarity, discipline over deception, character over cleverness, sacrifice over self-indulgence. Do not lose your enthusiasm. In its Greek etymology, the word enthusiasm means simply God in us. Serve your country. Insist we fight the right wars. Denounce oppression everywhere. So you will go on, and because of what you have learned and what you felt and what you will have been through, you'll all go far in life. Some of you will go distance from here. Many places, many achievements, many accomplished. What I want you to try to do is save a silver in your heart for this magnificent university and its faculty, who educated you for the utterless, wonderful, interesting, fascinating city of Hazara. Run a hard race. Abide by the rule of game. Your rewards will surprise you even. The Constitution signals you eternally. Even while your life is temporary and short, your contribution to the upkeep of the rule of law and constitutionalism can make you eternal. The nation must be taken forward on your shoulders. May you all have the strength, health, and unquestionable spirit to endure your endless journey. To each and every one of you, I wish you every success in your future careers and much joy as you celebrate the graduation ceremony today. Before I end my official speech, the Honorable Vice Chancellor of Science and Technology of Hyderabad has said about the IT courses for the youth of this city and Khyber Pakhtunkhwa. I am very glad that he has given me one proposal regarding the IT courses, which we can have it all the 34 universities, from which the youth of our province will get educated, and then they can have the online jobs, online business, and lot of things they can do in this world, because after pandemic, after COVID, the world has changed to online system. We are having online meetings, we are having Zoom, Skype type of meetings, we are having online shopping, we are having online businesses. So my proposal and the Vice Chancellors of the Khyber Pakhtunkhwa University, we are trying our level best to educate our youth. I have focused on two things, the youth of Khyber Pakhtunkhwa and the women empowerment. We are working for that, and inshallah, we need your support and pray that we should move forward. Again, the Vice Chancellor has talked about the vocational training also. We had a meeting 2-3 days back in Governor House where all the Vice Chancellors were present, where the international donors were also there, and NEFTEC was also there, and we are planning for the vocational training courses for our citizens of Khyber Pakhtunkhwa, that they should have at least vocational training and they can have some jobs, because everyone is looking for the job in public sector, and the government of Khyber Pakhtunkhwa, the government of Pakistan, they can't afford, because we have got 65% of youth, and in every university, when every year the students are graduating and they are searching for jobs. And I think the government is not capable of giving all of them jobs, but if they have got if they are IT expert, they have got the vocational training, they have got other trainings, I think, like I have got this law graduates here, they can start their law practice. Some of them will become judge, some of them will go to the
civil services also. So I also always, my prayers are with you, and inshallah ta'ala we are trying our level best. We are having a big challenge because in Khyber Pakhtunkhwa we are having 34 universities. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ایبٹ میں کانوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاشرے میں تعلیم کا حصول ناگزیر ہے. تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی. ہمیں جدید تعلیم کے حصول پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی. اور اب آپ کو لیے چلیں گے اسپورٹس نیوز کی جانب.